So we will start next topic in thermodynamics. In last session, I think we have discussed up to thermodynamic process, indicator diagram, thermodynamic variable, and we have discussed, I think, first law of thermodynamics or not. Have we discussed about the first law of thermodynamics? Work done, internal energy, past function, state function, that all thing we have discussed in the last class. First law we did not discuss in the last session. So we'll start from the first law of thermodynamics. You know what is the first law of thermodynamics? First law of thermodynamics. What is the first law of thermodynamics? So according to first law of thermodynamics, heat given to the any thermodynamic system or heat exchange with the any thermodynamic system will perform two functions. One part of the heat that is responsible for the change in internal energy of the system, and another part that is for the work done. That is for the work done. So according to first law of thermodynamics, heat exchange with the system to surround delta Q equal to delta U plus delta T, delta W, sorry, delta W. Delta Q, heat absorb or release. And delta U, internal energy. Internal energy. And delta W, that is work done. That is work done. So according to first law of thermodynamics, heat exchange between system and surrounding, that is equal to sum of change in internal energy and work done by the system or work done on the system. So this law is based on energy conservation. This law is based on principle of this law. Principle of this law is energy conservation. क्या है इसका प्रिंसिपल बेटा? एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पे बेस्ड है. किस पे है? एनर्जी कंजर्वेशन मीन्स जो अपन एनर्जी सिस्टम को दे रहे हैं या सिस्टम से एनर्जी ले रहे हैं, हीट एनर्जी, वो दो टाइप का वर्क करेगी. एक तो वर्क में चेंज हो जाएगा पार्ट, और दूसरा पार्ट इंटरनल एनर्जी में चेंज करेगा. दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, नथिंग एल्स. कंसेप्ट समझ में आ गया? व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? नेक्स्ट थिंग वी विल डिस्कस हियर, दैट इज स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस. हमने स्पेसिफिक हीट के बारे में डिस्कस पहले भी किया है. स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस. व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस? गैस की स्पेसिफिक हीट क्या होती है, दैट वी विल डिस्कस हियर. ठीक है. स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस, हमने वैसे स्पेसिफिक हीट के बारे में पहले बात कर ली. स्पेसिफिक हीट क्या होता है? हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 gram या 1 kg unit mass substance by 1 degree Celsius. That is the specific heat. So why we are discussing here for the gas differently? That is very important concept here. Specific heat of gas is varied. You know, in different thermodynamic process, specific heat is different. Specific heat may be zero. Specific heat may be positive. Specific heat may be negative, or may be infinite. May be infinite. If I say in adiabatic process, you know, specific heat that we know, delta Q equal to mc delta T. mc delta T, that is the specific heat concept. C is the specific heat, or molar specific heat. We can say molar specific heat और mass के लिए अलग से सकते हैं. तो first thing, if I say for adiabatic process, adiabatic process, you know what happened in adiabatic process? In adiabatic process, delta Q equal to 0. That means mc delta T equal to
0. Here we know M never be 0. Change in temperature will be there for the adiabatic process. Then what value will be 0? That means C will be 0. Specific heat will be 0 in adiabatic process. Specific heat will be 0 in adiabatic process. Second thing, if I say in isothermal process, isothermal process, so what happened in isothermal process? You know, in isothermal process, delta T equal to 0. Delta T equal to 0. If I say C equal to, you know, delta Q upon M into delta T. M into delta T. So here delta T is equal to 0. That means C equal to delta Q upon M into 0. So it is infinite. It is, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करके कितना आता है? इनफाइनाइट आता है. So here we have specific heat that is infinite. कितनी आ रही है? Infinite. Next thing, expansion. Let expansion. Expansion में क्या होगा? एक्सपेंशन में अगर अपन बात करें डेल्टा क्यू इक्वल टू नॉर्मल ये लिखेंगे एम इंटू या डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या होता है? एम सी डेल्टा टी. तो हमारे पास सी इक्वल टू क्या आ जाएगा? डेल्टा क्यू अपॉन एम इंटू डेल्टा टी. अब अगर हमारे पास देखो एक्सपेंशन हो रहा तो टेम्परेचर कम भी हो सकता है और टेम्परेचर ज्यादा भी हो सकता है. अगर आपके पास टेम्परेचर जो है हीट देने के बाद अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, क्या हुआ? टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, टी इंक्रीज, देन डेल्टा टी पॉजिटिव, डेल्टा टी पॉजिटिव, सो डेट सी इज आल्सो पॉजिटिव. सी क्या होगा? पॉजिटिव. ये अगर एक्सपेंशन आपका हुआ और एक्सपेंशन में टी क्या हुआ? डिक्रीज हुआ. टी क्या हुआ? डिक्रीज हुआ. देन डेल्टा टी क्या होगा बेटा बताओ? डेल्टा टी क्या होगा? नेगेटिव. डेल्टा टी क्या होगा? नेगेटिव. तो इसके अंदर सी क्या आएगा आपके पास? नेगेटिव. तो अपॉन में नेगेटिव होगा तो नेगेटिव नहीं हो जाएगा पूरा? ये वैल्यू माइनस की 2 है, इस पूरी वैल्यू को माइनस में करेगी नहीं करेगी? डेल्टा क्यू पॉजिटिव एम पॉजिटिव, डेल्टा टी क्या होगा? अरे यार मैं साइन की बात कर रहा हूं मेरे भाई. ये अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव होगी कि नहीं होगी? क्यों एक्स्ट्रा ज्ञान ले रहा फालतू में? अगर ये वैल्यू नेगेटिव है तो ये पूरी वैल्यू नेगेटिव होगी कि नहीं होगी? इंक्रीज डिक्रीज से क्या मतलब हुआ? इंक्रीज हुआ इसका मतलब तो डेल्टा टी पॉजिटिव हो गया ना. इंक्रीज हुआ इसका मतलब डेल्टा टी क्या हुआ? पॉजिटिव होने से ये वैल्यू क्या हुई? अगर टी डिक्रीज हुआ तो ये डेल्टा टी क्या होगा? मैं केवल डेल्टा टी की बात कर रहा हूं यहां पे. ठीक है. तो इसका मतलब टी आपको स्पेसिफिक हीट क्या दिखी? 0 भी दिखी. स्पेसिफिक हीट आपको क्या दिखी? इनफाइनाइट भी दिखी. स्पेसिफिक हीट आपको कैसे दिखी? नेगेटिव भी दिखी और स्पेसिफिक हीट आपको पॉजिटिव भी. तो गैस की स्पेसिफिक हीट पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है. समझ में आई बात? उसके बाद हमने 2 टाइप की स्पेसिफिक हीट पढ़ी थी मोलर स्पेसिफिक हीट के अंदर. मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट हमने पढ़ा था नहीं पढ़ा था? इस मोलर स्पेसिफिक हीट में क्या होता है? सीपी और सीवी को हम लोग कंसिडर करते हैं. 2 टाइप की होती है. मोलर स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या हो गया? हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस. हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस, दैट इज द मोलर स्पेसिफिक हीट. तो सीपी मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ कांस्टेंट प्रेशर. मोलर specific heat of constant pressure. Constant pressure. और CV molar specific heat of
molar specific heat of constant volume. Molar specific heat of constant volume. तो अब यहां पे देखिए बेटा, इसके अंदर सीपी और सीवी हमने पढ़ा, इसकी डेफिनेशन में पहले ही लिखा रखा कि हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ वन मोल सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट इज स्पेसिफिक हीट ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम, एंड एट कांस्टेंट प्रेशर, दैट इज सीपी, that is known as molar specific heat of constant pressure, Cp and Cv. Now here important thing, relation between Cp and Cv. Relation between Cp and Cv, this is known as Mayer relation. Mayer's relation. क्या बोलते हैं बेटा इसको? Mayer's relation. क्या होता है ये हमें निकालना है. तो you know, first of all, by first law of thermodynamics, what is the first law of thermodynamics? First law of thermodynamics. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अकॉर्डिंग क्या होता है बेटा? डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम. कांस्टेंट वॉल्यूम, व्हाट हैपन एट कांस्टेंट वॉल्यूम? डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू 0. वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, डेल्टा डब्ल्यू कितना होगा? 0 होगा कि नहीं होगा बताओ? होगा. दैट मीन्स सो डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू. डेल्टा क्यू क्या होता है? एन सीवी डी टी हो जाएगा. यहाँ पे क्या हो जाएगा? एन सीवी डी टी. तो इसको ऐसे फॉर 1 मोल क्या लिख सकते हैं हम लोग? फॉर 1 मोल. 1 मोल के लिए देखेंगे क्या होगा बेटा बताओ? 1 मोल के लिए क्या होगा? एन इक्वल टू 1 ले सकते हैं. एन इक्वल टू क्या ले सकते हैं? 1. तो डेल्टा क्यू इक्वल टू सीवी इंटू डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा यू. इक्वेशन नंबर 1 दे दे. ठीक है. नाउ एट कांस्टेंट प्रेशर, व्हाट हैपन एट कांस्टेंट प्रेशर? कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होगा बताइए? डेल्टा क्यू इक्वल टू सीपी डेल्टा टी. एन सीपी डेल्टा टी होता है नहीं होता है? बाय फर्स्ट लॉ, बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या हो जाएगा बताओ? डेल्टा क्यू क्या होता है? डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू. तो डेल्टा क्यू क्या हो गया अपने पास? सीपी इंटू डेल्टा टी. डेल्टा यू अपने पास क्या है? सीवी इंटू डेल्टा टी. और प्लस डेल्टा, इसको लिख दो कांस्टेंट प्रेशर है तो डेल्टा वी. डेल्टा वी. अब डेल्टा टी से डिवाइड कर दे पूरे को, तो क्या हो जाएगा? सीपी इक्वल टू सीवी प्लस पी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी. डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी. क्यों हुआ पता चला? सबसे डिवाइड किया तो डेल्टा टी कैंसिल, डेल्टा टी कैंसिल. डिवाइड बाय डेल्टा टी, डिवाइड बाय डेल्टा टी. कोई दिक्कत है इसमें? चलो नेक्स्ट हमारे पास देखो, नेक्स्ट क्या होगा? सीपी माइनस सीवी इक्वल टू पी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी. इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं. बाय आइडियल गैस इक्वेशन. आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहते हैं बेटा? पीवी इक्वल टू आरटी लिख दूं मैं 1 मोल के लिए. इसको ऐसे लिखते हैं क्या? पी इंटू कॉन्स्टेंट प्रेशर, तो पी इंटू डेल्टा वी इक्वल टू क्या होगा? आर इंटू डेल्टा टी. हमारे पास क्या हो जाएगा यहां से? पी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू आर.
तो हमारे पास क्या आ जाएगा, Cp माइनस Cv इक्वल टू R, दैट इज द रिलेशन। ओके, समझ में आ गई चीज? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस। You know what is the isothermal process? Thermodynamic process in which temperature of the substance या working substance remain constant. So thermodynamic process in which temperature of substance remain constant. That is known as isothermal process. That means here delta T equal to 0. Change in temperature equal to 0. You know, internal energy is function of temperature. Internal energy is function of temperature. Function of temperature. That means what? That means change in internal energy. That means change in internal energy. Change in internal energy will be zero. Will be zero. होगी कि नहीं होगी बताओ? हम लोग क्या लिखेंगे, डेल्टा U इक्वल टू 0. ये होगी, समझ में आ गई यहां तक चीज? नाउ वी विल डिस्कस कंसेप्ट बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. बाय first law of thermodynamics. What is the first law of thermodynamics say? What is the first law of thermodynamics say? Delta Q equal to delta U plus delta W. So here delta U equal to 0. So delta Q equal to delta W. What is the information we will fetch out from here? That means change in heat exchange between system and surrounding will be equal to work done. Heat exchange between system and surrounding will be equal to work done, not change in. work done में कभी change in नहीं बोलते, हाँ लिखने में वो ऐसा लिखते हैं. समझ में आ गई बात? इक्वल टू वर्क डन. किसके इक्वल होगा? वर्क डन. समझ में आ गई बात? नाउ व्हाट इज द वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस? What is the work done in isothermal process? Work done in isothermal process. Work done in
isothermal how much work will be done in isothermal process. So work done in isothermal process, you know, we have discussed one formula, W equal to integration of P dV. Here volume vary from V1 to V2. V1 to V2. Now we know by ideal gas equation, what is the ideal gas equation, Arvind? PV equal to nRT. Can we find the value of P here? That is nRT upon V. Equation number 1, equation number 2. From 1 and 2 क्या हो जाएगा? W equal to integration of nRT upon V dV. V1 to V2. अब मुझे बताओ W इक्वल टू nRT क्या आएगा बेटा? बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है. इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन V dV. 1 upon V volume V1 to V2. Now we know what is the integration of 1 upon x dx. 1 upon x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? ln x. क्या होता है? ln x. So here W equal to nRT ln V limit V1 to V2. First of all we will put, कौन सी लिमिट पहले करेंगे पुट? पहले कौन सी लिमिट पुट करते हैं? अपर लिमिट. देन माइनस करके कौन सी करते हैं? लोअर लिमिट. तो W इक्वल टू nRT ln V2 माइनस ln V1. यहां तक कोई समस्या है? अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, ln A माइनस ln B क्या होता है हर्षिता? ln A अपॉन B. याद है? तो यहां से W इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास? nRT ln V2 अपॉन V1. इस ln को अगर log में कन्वर्ट करना, किस में कन्वर्ट करना है? क्योंकि इसका बेस कितना E है. अगर इसको log में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं पता है? 2.303 से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं. किसे मल्टीप्लाई करते हैं? 2.303 से. तो W इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2.303 nRT log बेस 10 हो जाएगा यहाँ पे V2 अपॉन. अब हमें पता है कि V इक्वल टू क्या होता है? nRT होता है. PV इक्वल टू nRT होता नहीं होता है? होता है. तो हम लोग ऐसे लिखते हैं PV इक्वल टू हमारे पास क्या है? nRT है बेटा. तो P1 V1 इक्वल टू क्या होगा? nRT1. P2 V2 इक्वल टू क्या होगा? nRT. तो अब T1 T2 लिखेंगे क्या बताओ मुझे? यहाँ पे T1 T2 नहीं लिखना है. क्यों लिखना पता है? टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट. तो ये nRT और यहाँ पे भी nRT, दोनों एक दूसरे को डिवाइड करते बेटा. तो क्या हो जाएगा? P1 V1 अपॉन P2 V2 इक्वल टू क्या होगा? 1. तो इसको ऐसे लिखते हैं क्या? P1 अपॉन P2 इक्वल टू V2 अपॉन V1. तो यहां से अपन वो क्या हो गया? शो. हमारे पास ये क्या हो जाएगा? W इक्वल टू 2.303 nRT log P1 upon P2. This is the work done in isothermal process. ठीक है? मॉड्यूलस log is always possible for positive value only. तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया बेटा? आइसोथर्मल प्रोसेस की सारी कंडीशन हमने पढ़ ली. मेयर रिलेशन हमने पढ़ लिया. ठीक है? स्पेसिफिक हीट के बारे में हमने पढ़ लिया, गैस की क्या होती है, एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है. दैट ऑल कंसेप्ट वी हैव डिस्कस इन दिस लेक्चर. नेक्स्ट प्रोसेस एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस, heat engine concept, second law of thermodynamics, and all other we will discuss in next class. So that's all for this session. See you in next class.